Hello students, welcome back in the next session of chemistry for class plus 2, and chapter that we were doing is solutions. In the last session we have learned about ideal solutions. That what are ideal solutions? I'm just recalling that part that we have learned, that ideal solutions are the solutions in which the Rod's law is obeyed at all conditions of temperature and concentration. And second fact for the solution to be ideal is the like forces must be similar to unlike forces, right? And the third factor is delta V mixing is always equal to 0. It should be equal to 0. It means there should be no change in volume on mixing the two components. And fourth one is was there should be no heat change or energy change in the during mixing of two components. That is delta H mixing is always equal to 0. It is neither absorbed nor evolved. And there should be no chemical reaction between solvent and solute. And the last but not the least is solute molecules do not dissociate or associate in an ideal solution formation. Okay? And we have done the straight line graph of the graphical representation of ideal solution, right? So, and also we have we have learned some examples of making an ideal solution. And one thing more we have done, that practically there is no ideal solution possible, but however following some binary mixtures nearly show ideal behavior. For example, the mixture of benzene and toluene, carbon tetrachloride and silicon tetrachloride, chlorobenzene, bromobenzene, and so on. Okay? So now, and one thing more, very dilute solution always behave as ideal solutions. Okay? Very dilute solutions. And next one is the topic which we are going to do today is non-ideal solutions. Non-ideal solutions. Non-ideal solutions. First point for the we can say that we will discuss the type of deviations from ideal behavior of a solution in this topic. And the first deviation is non-ideal solutions do not obey Rod's law at all conditions of temperature and concentration. That is, we can say that PA is not equal to PA naught XA, comma PB is not equal to PB naught XB. Okay, and moreover, P is not equal to PA plus PB. The total pressure is also not equal to sum of the pressures of individual components. Okay. Second, delta V mixing is not equal to 0. It means there will be a change in the volume of solution after mixing the two components. The delta V mixing not equal to 0. Okay. There will be some change in volume for non-ideal solutions. And for non-ideal solutions, delta H mixing is not equal to 0. It means there is some, either the heat will be evolved or the heat will be absorbed when we mix the two components of a solution together. Okay, so delta H mixing is not equal to 0 also. So these three conditions are the conditions which must not be satisfied by a solution to be non-ideal. Okay? And one thing more, the non-ideal solutions are of two types. The non-ideal solutions beta are of two types. First one is non-ideal solutions with positive deviation.
first one we will gonna do is the non-ideal solutions with positive deviations. In such type of deviation beta, the observed vapor pressure is found to be greater than expected और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम द रॉल्स लॉ. याद रखना प्लीज, जो हमने रॉल्स लॉ में किया था दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होता है, बट इन द सॉल्यूशंस, द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच विद positive deviations, PA is not equal to this, it is always greater than this, and PB is also greater than PB not XB. It means in such type of solutions the observed vapor pressure is greater than the expected vapor pressure. Clear? उससे ज़्यादा होगा हमेशा, ठीक है. And also the total vapor pressure is also greater than PA plus PB. So these are the conditions for first condition for the non-ideal solutions. Explanation अभी तो बता रहा हूँ आपको क्यों होता है ये, ऐसे कैसे होगा, क्यों होगा. Suppose we have two volatile components A and B. Suppose we have two volatile components A and B. Both are volatile. A is solvent, suppose B is solute. ठीक है. Now, if we mix them together, the intermolecular force between the unlike molecules is less than the molecules like molecules. Then the rate of evaporation always increases on mixing. मतलब अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स है A एंड B, दोनों ही वोल्टाइल हैं, अगर मैं इनको मिक्स करूँगा सोल्यूशन बनाने के लिए, और अगर जो सोल्यूशन बनेगा उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, अगर वो कम होंगी देन क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली. ठीक है, क्लियर, समझे कैसे. सपोज इसमें इंट्रैक्शन है सपोज ए, इसमें अपनी इंट्रैक्शन है सपोज बी बी, और इनके पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन ऐसी हैं, इनके पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन क्या है सपोज दिस है. अगर मैंने दोनों को मिक्स किया तो इंट्रैक्शंस होंगी ए बी के बीच में. तब मिक्स करने के बाद जो ये इंट्रैक्शन न्यू बनेंगी ना, तो क्या हाल होगा इसका, ये होगा कि ए बी इंट्रैक्शंस हैं दे आर वेरी वीक देन ए एंड बी बी, ये वीक होंगी. तो सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स के में इंट्रैक्शन हुई अभी नया सोल्यूशन जो हमने बनाया दोनों को मिक्स करने के बाद, वो बहुत वीक हैं. तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होंगे एज़ कम्पेयर टू दीज टू प्योर कंपोनेंट्स. ठीक है, अगर ज़्यादा इवेपोरेट होंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी एट सेम टेम्परेचर तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. दैट्स वाई दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर ऑल्सो मेड. अभी सुनना कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस होंगी जब कोई सब्सटेंस पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. फर्स्ट वन इज कैसे होगी, हमने अभी किया अभी, ड्यू टू डिक्रीज इन intermolecular force on mixing two components. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो जाएगी अगर, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, सेकंड थिंग इज इसी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले ज़्यादा थी, तो पहले जो प्योर कंपोनेंट थे ए एंड बी उसमें मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा थी. अगर वो ज़्यादा होगी तो वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे, अगर नज़दीक होगी तो सरफेस एरिया कम ऑक्यूपाई करेंगे, अगर वो कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या होगा, उनकी वॉल्यूम कम होगी पहले. बट अब जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, तो वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब मास वो कह सकते हैं हम, सॉरी लीव इट. ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगा. अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा
तो क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो द लिक्विड्स और सॉल्यूशंस विच विल शो पॉजिटिव डेविएशन, उनकी डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, उनकी वॉल्यूम मिक्स करने के बाद बढ़ जाएगी. और वी कैन से दैट वी ऑफ सॉल्यूशन is always greater than V of solute and solvent, right. दोनों की सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी हमेशा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन वीक होगी. अगर वीकर है तो वो दूर दूर रहेंगे, अगर दूर दूर रहेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा बाद में. थर्ड वन इज, अभी सुनो, पहले क्या था, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, मतलब ए एंड बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर. अब जो नई इंट्रैक्शन बनी वो क्या बनी, वीक बनी. तो क्यों बनी पता कुछ, हमने बोला कि ए और ए में एंड बी और बी में जो इंट्रैक्शन है दे आर वेरी मच ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर देन ए बी. क्यों होगा पता है, ए बी की वीक क्यों हुई, क्योंकि हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड. अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो हीट एब्जॉर्ब की इन्होंने, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये हमेशा वीक रहेगा. अगर ये रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक रहेगा. याद रखना, द सॉल्यूशंस विच विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ या फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, तो प्लीज़ ये याद रखना, दे ऑलवेज हैव डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो. मतलब रिएक्शन क्या होगा, हमेशा एंडोथर्मिक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा, ये बॉन्ड जो नया बन रहा है वो वीक बन रहा है, तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ी, पर जो बना वो वीक है, जो रिलीज़ हुई वो बहुत कम हुई, तो नेट क्या हुआ, हमें ज़्यादा देनी पड़ी. तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा बेटा, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. ठीक है, क्लियर, ओके. तो ये याद रखना प्लीज़. तो द सॉल्यूशंस the solutions, or we can say that the liquids which will show positive deviation from ideal behavior, they always possess these three conditions. They always have to satisfy these three conditions. First one is there is decrease in intermolecular force on mixing, and due to this delta V mixing greater than zero, and also delta H mixing is always greater than zero. And there are some examples of the solutions that show positive deviation, or the mixtures that show positive deviation. First one is cyclohexane and ethanol. एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसकी मैं, और बहुत है, इसको एक्सप्लेन करूँगा. इथेनॉल में क्या होता है, पहले ये सपोज ए है, ये सपोज क्या है, बी है. साइक्लोहेक्सेन के साथ लगा होगा, उनकी खुद की इंट्रैक्शन होगी. इथेनॉल के साथ लगा होगा कैसे, CH5OH ये होता है, ठीक है, और इसका O इसके H के साथ C2H5 ये होगा. ठीक है, मतलब ये हमेशा अपने के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा. अगर हम इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल दें तो इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन इंटरेक्ट करेगा इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ, HOC2H5. तो ये बॉन्ड जो है, मतलब ये A B इंट्रैक्शन है, ये क्या होगी, बहुत वीक होगी. अगर वीक होगी तो इसके वेपर्स पहले कम बनते थे, इसके भी कम बनते थे, पर इसके अभी वेपर्स दोनों के क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे. वेपर ज़्यादा बनेंगे, दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. ये तो एक एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल की. आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दैट शो पॉजिटिव डेविएशन इज एसीटोन, इथेनॉल. एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस CHCl3, सॉरी, क्लोरोफॉर्म. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दैट विल शो द पॉजिटिव डेविएशन. तो उसका ग्राफिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद शो दैट शो पॉजिटिव डेविएशंस कैन बी शोन ग्राफिकली एज फॉलोज. अब हमारे पास था, कल हमने किया था कि यहाँ पे अगर x से इज इक्वल टू 1 है
तो एक्स बी ज़ीरो होगा, यहाँ पे एक्स ए ज़ीरो है तो एक्स बी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। मतलब इधर को क्या था मोल फ्रैक्शन था, राइट। पर इधर को क्या है हमारे पास वेपर प्रेशर है इधर की साइड, राइट। तो हमारे पास आया था कि ये सपोज पी ए है, मैं डॉक्टर दिखा रहा हूँ जो हमने उस दिन किया था, वो मैं जो एक्चुअल ग्राफ है इसका आइडियल सोल्यूशन था वो डॉक्टर दिखाया मैंने। ये हमारे पास पी ए नॉट था, ये हमारे पास पी बी नॉट था, एंड ये हमारे पास टोटल प्रेशर था, याद है। तो अभी जो पॉजिटिव डेविएशन है वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे ग्राफ क्या आएंगे, कर्व आएगी अबव द रियल कर्व एक्चुअली। तो ये जो नया मैंने बनाया है, जो कर्व्स बनाई है ये वाली ऐसे सभी ऊपर को बनाई है, इसके भी ऊपर है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये सारे क्या है बेटा द ग्राफ ऑफ, ये जो डॉटेड वाला है आइडियल का ग्राफ है, ये जो ये वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। क्लियर। सो graphically it can be represented as this only, the solutions of the non-ideal solutions with positive deviation can be shown as this, like this only, ठीक है। okay, this is all about the non-ideal solutions with the positive deviation. So now we will do non-ideal solutions with negative deviations. Okay, this is all about the non-ideal solutions about with the positive deviations. Now we will do the non-ideal solutions showing negative deviations, the second type of non-ideal solutions. In such type of deviations beta, the observed vapor pressure is less than the expected vapor pressure. Excuse me. PB is less than PB naught XB, and P is again less than PA plus PB. How does it happen? Suppose we have two components, A interactions with, that is component A, and with B interactions, that is component B, right. Now if we will mix these two components with each other and there is a solution formed, and in that solution there are interactions AB occur. If the interactions AB are matlab it means that interaction between AB becomes, if they become greater than the interaction between AA and BB, मतलब अगर दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसमें दोनों कंपोनेंट्स में सपोज आपस में कोई इंट्रैक्शन हो गई, कोई बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइपोल बॉन्ड बन, कुछ भी बन गया, तो बॉन्डिंग होने के बाद जो इंट्रैक्शन हुई सपोज वो ज़्यादा हो गई, स्ट्रॉन्ग होगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू द टू कंपोनेंट्स दैट वी हैव टेकन प्रीवियसली, देन क्या होगा, तो इनके वेपर्स कम बनेंगे। वाई? बिकॉज इनका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा विथ टेम्परेचर और विथ सेम टेम्परेचर, एंड वेपर्स कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द मेन रीजन अगेंस्ट इट, एंड सो वी कैन say that first one, due to the non-ideal solutions show negative deviation due to the increase in intermolecular forces, right. And second one is, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे बेटा तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। थर्ड वन इज, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, नो वो भी क्या हो जाएगी, लेस देन ज़ीरो। इट मीन्स
रिएक्शन क्या होगा वो एक्सोथर्मिक, क्योंकि बाद वाली जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली द रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशंस, and there are some examples for this. For example, if we have acetone and chloroform CHCl3, if we will talk about this after mixing acetone, what is acetone? It is CH3 C double bond O, right? That is CH3COCH3. It is propanone also. And after mixing with chloroform, that is HCCl, right? They will form hydrogen bonding, the two molecules. This is A, this is B. These are the AB interactions जो पहले नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, बाद में बन गई। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो इनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. That's why they will show negative deviations. These types of solutions will show negative deviation from the ideal solutions. ठीक है. So we can say, we can cast some more examples for against this, that is CH3OH and CH3COOH, methanol and ethanoic acid, water and nitric acid, water and HCl also, and so on. There are much more examples of this. Now, graphically it can be represented as this: xa is equal to 1, xb is equal to 0, xa is equal to 0, xb is equal to 1, and we are taking mole fraction on this side and vapor pressure on this side. ठीक है, एंड यहाँ पे था PA नॉट, अगर ये कंडीशन है तो ये प्रेशर होगा PB नॉट, एंड दिस इज अ कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशन टू बी आइडियल. ठीक है, दिस वाज अ कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, but now the solution is showing negative deviation, so all the graphs will be like this, curve will slope downwards. ठीक है, so this is of negative deviation from ideal behavior, and this is dotted line is a curve of ideal curve. Clear? So this is all about the ideal and non-ideal solutions, and also the non-ideal solutions are of two types: positive with the positive deviation from Raoult's law, and the solutions showing negative deviation from Raoult's law. ठीक है, okay. So this is all about it. And also, if the difference comes in paper, that differentiate between ideal and non-ideal solutions, I think you are quite able to explain it now. And if also the difference between if also I think you were asked about the difference between the non-ideal solutions only with the positive and with the negative deviations, then I think also you can write many more points in this. Examples: graph, delta V mixing, delta H mixing, and do not obey Raoult's law. ओके, सो वो तो सिमिलरिटी होगी, ये होगा. इंट्रैक्शंस पे भी लिख सकते हो आप कि जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें ए बी इंट्रैक्शंस कम होगी, एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. आई थिंक इट वॉज एन ईजी टॉपिक to understood. Now next one, but the most important one. Okay, what are azeotropic mixtures and what are azeotropes? Azeotropic mixtures, or they are also known as, second point name is constant boiling mixtures. Okay, why they are known as constant boiling mixtures? Or the question comes in paper that what or which type of solutions are azeotropes, or which type of solutions form azeotrope, and how many types of azeotropes are there. Azeotrope means azeotropic mixtures, both the same thing. Okay, as we know that the components of binary liquid mixture, right? Binary liquid मतलब both the components would be liquid,
having different boiling points can be separated by the process called fractional distillation, right? अगर दो हमारे पास बॉइलिंग लिक्विड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट? Fractional distillation is a better technique as compared to the simple distillation, and fractional distillation can be used where the boiling point difference between the two liquids is less than 25 degrees Celsius, right? Now, the separation of liquid components beta by distillation is possible only when the composition of components in vapor phase is different than from that of the boiling liquid mixture, right? ये याद रखना, दो लिक्विड्स को दोनों अगर वोल्टाइल हैं उनको हमने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन। वो तभी पॉसिबल होगा अगर उनकी कंपोजिशन वेपर फेज में डिफरेंट है और बॉइलिंग मिक्सचर में डिफरेंट है। अगर दोनों की कंपोजिशन वेपर फेज और बॉइलिंग फेज में सेम होगी ना, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द लिक्विड मिक्सचर्स। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सपोज मैं कह रहा हूँ अगर एक इथेनॉल एक वाटर है, इथेनॉल हमने ले लिया, वाटर ले लिया, दोनों का मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफर कर रहा है बेटा। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो अगर हम दोनों को बॉयल करेंगे तो इथेनॉल पहले बॉयल होकर बाहर आ जाएगा, वाटर पीछे रह जाएगा। बट अगर हम दो ऐसे सॉल्यूशन मिक्स कर दें जिन दोनों का मिक्सिंग के बाद बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, तो क्या वो सेपरेट हो जाएंगे? वो कभी सेपरेट नहीं होंगे। एंड दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। मतलब सुनो, अभी अगर सपोज मैंने एक कंपोनेंट ले लिया ए, सपोज सुनो इंटरेस्टिंग है ये, एक मैंने कंपोनेंट ले लिया बी, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है x डिग्री से, इसका बॉइलिंग पॉइंट है y डिग्री से। दोनों की मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ले ली, फिक्स अमाउंट दोनों की ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने एक सोल्यूशन बना दिया ए बी, ठीक है। सोल्यूशन बना दिया। अब मैंने सोल्यूशन जो बनाया इसमें क्या हुआ, जब मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट में इनको मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, इसमें क्या हो गया, सपोज इस पूरे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सपोज बन गया z डिग्री से। अभी क्या हुआ, अगर मैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके मतलब हीट करके या बॉयल करके अलग अलग करना भी चाहूँगा ना ए और बी को ऐसे, तो वो नहीं होंगे कभी। वाई? बिकॉज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। सरप्राइज्ड है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा सर, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम रहेगा? नहीं बेटा, अगर हम एक पर्टिकुलर कंपोजिशन लेंगे, दोनों कंपाउंड्स के उसको मिक्स कर देंगे, तो एक दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। जिसका ज़्यादा है कई बार उसका ज़्यादा कम हो जाता है, या जिसका कम है उसका ज़्यादा भी हो जाता है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो दे विल बी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंड दे आर नोन एज आइसोटोप्स। क्लियर? और एक चीज़ और, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन सॉल्यूशन की ज़्यादा बेटर होती है जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और हमें पता है कि प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन बनाने बहुत मुश्किल हैं। सो नॉ आइडियल सॉल्यूशंस क्या करते हैं, जो डिस्टिलेशन होती है उनकी, दे मिक्सचर बना देते हैं वो, विच बॉयल्स एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल्स ओवर कम्प्लीटली एट द सेम टेम्परेचर। अगर हम उसकी डिस्टिलेशन कराएंगे तो सेम टेम्परेचर पे ही शो करेंगे, दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेपरेट करना उसको मुश्किल हो जाएगा। दैट मिक्सचर इज नोन एज azeotropic मिक्सचर और constant boiling mixtures. So we can say that we can define the azeotropes. The azeotropes are defined as the mixtures or are the mixtures of liquids. ये याद रखना कि लिक्विड्स के ही मिक्सचर होंगे वो, which boil at constant temperature जो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होंगे, लाइक अ प्योर लिक्विड। ऐसे जैसे कि उनका वो मिक्सचर नहीं है, वो एक प्योर कंपाउंड ऐसा रहेगा, विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन द कंपोजिशन, विदाउट
undergoing change in the composition. composition में कोई चेंज नहीं आएगा and they are known as azeotropic mixtures or azeotrophs. Please learn this definition and please इस टॉपिक को जो मैं बोल रहा हूँ इसको चाहे 2 बार सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों को कई बार एक बार में समझ नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. बेटा एजोट्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स. The first one is maximum boiling azeotrophs. Second one is minimum boiling azeotroph. Now maximum boiling azeotroph, याद रखना, in these type the non-ideal solutions having negative deviation are used. ठीक है ना. Those non-ideal solutions which show negative deviation from Raoult's law, they always form maximum boiling azeotrophs. मतलब इनका boiling point बढ़ जाता है, ये boil नहीं होती. That is, it boils at a temperature greater than the boiling points of the components. We can say that maximum boiling azeotrophs are it boils at the temperature greater than the boiling points of components liquids. ठीक है, मतलब इनके लिक्विड के जो कंपोनेंट हैं उनसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट. क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन वही शो करते हैं जिनकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है आफ्टर मिक्सिंग. याद है ना, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाती है, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होती है और इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. अभी हमने किया था. सपोज इफ वी टेक an example of HCl in water. Suppose we have A component and B component. Suppose we have A as water and B as HCl. It is solute. B is solute always. A is always solvent. And mass percentage of A is, suppose that we have to take, is 79.7. 79.7 हमने ली है टोटल परसेंटेज A की. जो बाकी पीछे बचा वो कितना है, वो क्या लिया है, सॉरी हमने HCl लिया. ठीक है ना. इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, हमें पता है 373 केल्विन. बेटा HCl का बॉइलिंग पॉइंट होगा हमेशा 188 केल्विन. ठीक है. अगर दोनों को हम मिक्स कर दें, इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया है AB, तो AB जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो एजोट्रॉप बनेगा, क्या बनेगा, ये एजियोट्रॉप. उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा देखा गया है कि 383 केल्विन हो जाता है. इसका ज़्यादा था, इसका कम था, पर मिक्स होने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया, हाई हो गया. इससे भी ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप. क्योंकि HCl और वाटर में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है. दैट इज़ वाई दिस इज अ मास परसेंटेज ऑफ A ओनली, नॉट B. B की निकाल लेंगे हम. मास परसेंटेज ऑफ B कितनी आएगी, 100 माइनस 79.7. एंड व्हाट वुड बी द आंसर, 100. 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 9 0, राइट. 20.3% ऑफ E. मतलब अगर हम 20.3 ग्राम HCl वाटर में डाल दें, उसको मेकअप कर लें 100 ग्राम तक और 100 ml तक, तो क्या बनेगा हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट बन जाएगा. क्लियर.
This is an example of maximum boiling isotope. There are many more examples of this. You can check it or you can learn it from your book also. So I'm giving you only one example of this. So you have to learn this example. I think it is sufficient for the exams also. Okay. So next we are going to do the minimum boiling isotopes. But a minimum boiling isotope will be formed by non-ideal solutions as obvious with having which deviation, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल सिंपल सी बात. ठीक है. ओके. एंड these solutions or this solution boils at temperature lower than or less than the boiling point of सेम थिंग बेटा जब मैं पहले लिखी थी कंपोनेंट्स लिक्विड्स. ठीक है. क्लियर. एंड फॉर एग्जांपल हम ले लें वाटर और इथेनॉल. सेम थिंग. सपोज ए है, हमारे पास बी है. ए इज सॉल्वेंट, सॉरी बी इज सॉल्यूट ऑलवेज. सपोज ए हम ले रहे हैं वाटर, ये ले रहे हैं इथेनॉल, C2H5OH. द कॉमन एग्जाम्पल इज दिस ओनली. देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो बट दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल. ओके. इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म दी थी ना हमने पहले, उसमें बाद में क्या हो, सॉरी देख. ठीक है. हो गया. नाउ ये ले लिया हमने, वाटर और इथेनॉल ले लिया. तो वाटर और इथेनॉल पहले तो इनमें बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर इनको मिक्स करेंगे जो बॉन्डिंग बनेगी वो वीक होगी, इसलिए दे विल शो पॉजिटिव डिवीजन. एंड मास परसेंटेज ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट कितनी लेनी है इसमें 4.43. तो मास परसेंटेज ऑफ बी कितनी आएगी 100 माइनस 4.43. 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 5 4, सॉरी 9 माइनस 4.5 एंड अगेन 9 माइनस 4, फिर क्या आ गया 5 9. 95.57% अगर हम इथेनॉल ले लें, उसको पानी में डाल दें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप बन जाएगा वाटर एंड इथेनॉल का. एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एज वी नो 373 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 351.3 केल्विन, दैट इज 78.3 होता है वो. ठीक है. तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद एक सोल्यूशन बना लिया हमने, दैट इज आइसोटोप बना दिया AB, इन दोनों का मिक्सर बना दिया. तो हमने देखा है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 351.1 केल्विन हो जाता है. इसका थोड़ा सा कम हो गया, इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया. दैट्स वाई दे आर नोन एज मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, राइट. एंड दैट्स ऑल फॉर द today's lecture. And in the next lecture we will discuss about the numericals of Raoult's law, which are very important for the board exams, and also we will learn something about colligative properties. That is a very important part of this chapter. So first we will discuss the numericals in detail for this topic, that is Raoult's law. Okay, for the next session. If you have better any queries, you can please text me or call me at any time. Okay, so take care, bye bye, have a nice day.